Okay guys, so today's topic of discussion is resonance or mesomeric effect. Now to understand resonance or mesomeric effect, one should have a clear idea about all the structures of benzene and especially the structure proposed by Kekulé. Okay, when benzene was discovered by Faraday from whale oil in 1825, various scientists came forward with the idea of structure of benzene. Among them, one of the scientists was Ladenburg's prism formula. Now, according to this prism formula, the structure of benzene, the benzene which was given by C6H6, has a three-dimensional structure like this. See, the three-dimensional structure. Now, these are nothing but the carbon atom has two hydrogen attached to it. Okay, or one hydrogen single bond attached to it, because 4 valency ain't satisfy. Okay, even here there is one hydrogen atom, here there is one hydrogen atom, here there is one, here there is one, here there is one hydrogen atom. So total in case of this Landberg's prism formula, there's 6 hydrogen atoms, C6H6. But ये structure later on reject हो गया. Reason? Because this structure cannot able to prove the addition reactions of benzene. Benzene undergoes certain amount of addition reaction. वो ये prove नहीं कर पाया because ये सब single bond है और single bond कभी भी addition reaction नहीं देते, double bond देते. For example, C double bond C alkene, इस पे आप bromine ऐड करोगे तो it forms CBr single bond CBr, एक विसिनल डाइहाइलाइड बना के देगा. सो एडिशन रिएक्शन ये नहीं दे रहा है मॉलिक्यूल, तो ये रिजेक्ट हो गया. सेकेंड फॉर्मूला उसके बाद में जो बेंजीन का प्लेस्ड हुआ, that is cross diagonal formula like this. This is the formula, but again it fails to explain the addition reduction reaction because यहाँ पर again single bond है, single bond में addition reaction नहीं होता और बेंजीन addition reaction देता था, तो ये भी फेल हो गया. फिर उसके बाद में थर्ड फार्मूला आया, दिवास फार्मूला. बराबर देखो, इसके अंदर उसने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जहाँ पर उसने पर्पसली डबल बॉन्ड प्लेस किया, ये प्रूफ करने के लिए कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन देता है, बट बेंजीन के सारे बॉन्ड्स इक्वल होते हैं. मतलब बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियर इक्वल होता है. यहाँ पर आपको एक सिंगल बॉन्ड दिखता है और यहाँ एक डबल बॉन्ड दिखता है, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा वो टाइम पे, इसके लिए ये भी रिजेक्ट हो गया. देन उसके बाद में एक ट्राई किया साइंटिस्ट ने टू प्रपोज दी another structure of benzene. The another scientist was Armstrong in Bayes formula. Again उन्होंने कुछ hexagonal structure बना के दिया बेंजीन का with certain kinds of bond associated diagonally here. Even this structure was rejected because इसमें भी कोई satisfactory नहीं मिला explanation with respect to the reaction of benzene. Finally सब लोगों को पता है the most famous structure of benzene is what put forward by Kekulé, if you remember, जो हम लोग लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, that benzene has alternate single and double bondedness. एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑफ C6H6. ये ना बहुत क्लोज स्ट्रक्चर आता है विद रिस्पेक्ट टू NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के हिसाब से भी ये स्ट्रक्चर काफ़ी क्लोज है, प्लस इसमें आपको डबल बॉन्ड्स दिखाई भी दे रहे हैं, तो ये डबल बॉन्ड्स की वजह से बेंजीन एडिशन रिएक्शन देता है. और अगर एक बेंजीन मॉलिक्यूल की बात करो C6H6, तो वो अपने अंदर 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन ऐड कर सकता है. तो एक डबल बॉन्ड 1 मोल ऑफ ब्रोमीन ऐड करता है, तो कितने डबल बॉन्ड 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन ऐड करेंगे, ऑब्वियसली 3 डबल बॉन्ड. यहाँ पर आप देखोगे तो 2 ही डबल बॉन्ड है दीवार स्ट्रक्चर में. दैट इज़ वाई Kekulé स्ट्रक्चर वॉज मोर अप्रोप्रिएट एज कम्पेयर टू ऑल दीज. इवन द एडिशन ऑफ ओजोन, एवरी डबल बॉन्ड, ईच डबल बॉन्ड विल ऐड 1 मोल ऑफ ओजोन. मतलब एक डबल बॉन्ड है तो एक ओजोन ऐड करोगे तो वो ऐसा स्ट्रक्चर बना के देता है ओजोनॉइड का. मतलब 1 डबल बॉन्ड एड्स 1 मोल ऑफ ओजोन. और बेंजीन में C6H6 रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ ओजोन फॉर द एडिशन. तो 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन एडिशन, 3 मोल्स ऑफ ओजोन एडिशन, ये हमको क्या प्रूफ करके देता है कि बेंजीन के अंदर हैज़ ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड्स प्लेस किया है. बट
अब यहाँ से ना रेजोनेंस का स्टोरी स्टार्ट होती है। कैसे? केकुल ने जब ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया रेजोनेंस विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन, ही वॉज नॉट श्योर अबाउट द स्ट्रक्चर। वो कम्प्लीटली स्ट्रक्चर के बारे में सेटिस्फाइड नहीं था। कुछ रीजंस थे उसके। इसमें ना सबसे पहला रीज़न आता है इसके अंदर अबाउट बॉन्ड इक्विवेलेंसी। व्हाट इज दिस? अकॉर्डिंग टू केकुल, द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हैज़ ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। बराबर देखोगे तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से साइज में बड़ा होता है। C single bond C has a bond length. The distance between the two nuclei bond length is around 154 picometer. C double bond C, it is around 139 picometer. Clear है? Oh sorry, 133 picometer. Short होता है. So C double bond C 133 picometer है. C single bond C 154 picometer है. तो बेंजीन के अंदर दो टाइप के डबल बॉन्ड्स दिखने चाहिए। क्लियर है? बट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज यानी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या बोलता है? इट सेज दैट बेंजीन, इन केस ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, इट सेज दैट बेंजीन हैज़ अ बॉन्ड लेंथ ऑफ 139 पिकोमीटर। ना तो 154 दिख रहा है उसके अंदर, ना तो 133 दिख रहा है। सारे बॉन्ड इक्वल दिख रहे हैं। बराबर देखो, केकुले के हिसाब से इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इट शुड हैव सिंगल एंड डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटली। तो अगर उसमें सिंगल और डबल बॉन्ड होते तो यहाँ पर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड से हमें दो टाइप की बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटली वी शुड गेट टू टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड 154 एंड डबल बॉन्ड 133। बट बेंजीन में कोई भी बॉन्ड 150 और 133 का है ही नहीं, बल्कि बेंजीन में जितने भी बॉन्ड्स है ऑल दीज बॉन्ड्स आर इक्वल। सब बॉन्ड लेंथ इक्वल है 139 पिकोमीटर। तो ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डाइसी हो गया ये स्ट्रक्चर के लिए। तो मतलब बेंजीन का एक्चुअल प्रॉपर्टी, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये भी नहीं है। क्लियर है? दूसरा प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर कि ये स्ट्रक्चर क्यों ऐसा ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम, अगर सपोज मैंने एक साइक्लोहेक्सीन लिया है और उसमें हाइड्रोजन में ऐड कर रहा हूँ, ओके, तो दोनों हाइड्रोजन जाके कि कार्बन पे ऐड हो जाएंगे एंड यू विल गेट अ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है? नाउ द हीट ऑफ द रिएक्शन, द डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इज -120 किलो जूल्स पर मोल। मतलब इतना हीट रिलीज हुआ जब आपने एक डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड किया। जब आप दो डबल बॉन्ड लेते हो डाइन, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो गए टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर डेल्टा एच वैल्यू आएगा आपका -240 किलो जूल्स पर मोल। तो -240 मतलब 2 × 120, सीधा इसका डबल हुआ क्योंकि दो डबल बॉन्ड है। क्लियर है? अब अगर मैं ट्राइन लेता हूँ, जैसा बेंजीन, इट्स अ ट्राइन, सी 135 ट्राइन, तो इसमें 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो गए, ऑफ कोर्स इन प्रेजेंस ऑफ निकल। इतना इजीली रिएक्शन नहीं देता है बेंजीन एडिशन टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर जो डेल्टा एच आपको मिलना चाहिए, इट शुड बी 3 × -120, दैट इज 360 किलो जूल्स पर मोल मिलना चाहिए मुझको। बट ये वैल्यू 360 का नहीं आया। द एक्चुअल वैल्यू वॉज नॉट 360। वो आना चाहिए था 360, बट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ heat of hydrogenation of benzene was found to be -208 kilojoules। मतलब ये एक्चुअल वैल्यू था और वैल्यू थ्योरेटिकल ये आना चाहिए था। तो मतलब कितने वैल्यू का डिफरेंस हो गया यहाँ पर? द डिफरेंस इज ऑफ 152 kilojoules। सी प्रॉपर्ली। तो अगर बेंजीन में परफेक्ट 3 बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड्स, तो आंसर 360 आना चाहिए था। अगर उसमें परफेक्ट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो 2 डिफरेंट बॉन्ड लेंथ मिलना चाहिए था। क्लियर है? समझो अभी तक के जो मैंने एक्सप्लेन किया, इस पार्ट से मैंने क्या एक्सप्लेन किया, क्या प्रूव होता है कि बेंजीन के अंदर ट्रू डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड नहीं है। अगर ट्रू सिंगल और डबल बॉन्ड होता तो 2 डिफरेंट बॉन्ड लेंथ आती। उसके बाद अगर इसमें ट्रू डबल और सिंगल बॉन्ड होता तो हीट 360 आना चाहिए था।
बट हीट 208 आया, 152 का डिफरेंस मिला आपको। ओके, और थर्ड पॉइंट मैं आपको बता दूँ, थर्ड पॉइंट इज सी प्रॉपर्ली, अगर बेंजीन में मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें ट्रू सिंगल और डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, और अगर ये सिंगल और डबल बॉन्ड ट्रू होते तो इन सब का बॉन्ड लेंथ क्या आता, इक्वल। क्लियर है? तो उसमें केकुल ने क्या किया, केकुल ने बोला कि देर इज़ अ इक्विलिब्रियम बिटवीन दिस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड दिस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सी प्रॉपर्ली, मतलब बेंजीन के अंदर दो स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिसमें देखो अगर ये फर्स्ट और सेकेंड में डबल बॉन्ड है तो दूसरे स्ट्रक्चर में फर्स्ट और सेकेंड कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। सी प्रॉपर्ली, एंड देर इज़ ए इक्विलिब्रियम। तो अगर केकुली की ये बात सही होती तो ब्रोमीन ऐड करने पे दो टाइप के एडिशन प्रोडक्ट मिलते। एक, जब ब्रोमीन यहाँ पर ऐड हुआ डबल बॉन्ड पे, Br तो डबल का सिंगल हो जाएगा, और जब ब्रोमीन ये फर्स्ट और सेकेंड पे ऐड होएगा तो ये फर्स्ट और सेकेंड पे ऐड हो रहा है इधर पे, तो यहाँ पर ऐड होने से यहाँ पर एक ब्रोमीन मिलना चाहिए, यहाँ पर एक ब्रोमीन मिलना चाहिए, लाइक दैट। क्लियर है? सो मतलब दो टाइप के एडिशन होना चाहिए। और अगर एडिशन नहीं भी हो रहा है और सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो सी प्रॉपर्ली, सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पर हाइड्रोजन एटम होते हैं, ये हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट हो गए ब्रोमीन से, तो डबल बॉन्ड सपोज मैंने यहाँ डाल दिया है, तो अगर ये दो स्ट्रक्चर को बराबर देखोगे तो यहाँ पर ब्रोमीन फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे जहाँ पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर ब्रोमीन फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन में जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो आपको दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलने चाहिए थे, जहाँ पर ब्रोमीन एक डबल बॉन्ड सिस्टम पे है और यहाँ पर ब्रोमीन एक सिंगल बॉन्ड सिस्टम पे है। बट ऐसा एक्चुअली में नहीं हुआ, ऐसे कोई दो प्रोडक्ट मिले ही नहीं, उनको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है जिसको वो डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पा रहे, एंड दैट इज़ 1,2 डाइब्रोमो। वो ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि एक प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड पे दो ब्रोमीन है, एक प्रोडक्ट में सिंगल बॉन्ड पे दो ब्रोमीन है। नो, बिकॉज अगर ऐसे दो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे मिलते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। ऑल ऑफ देम वर फाउंड टू बी व्हाट, सेम। तो अब है ना थोड़ा सस्पिशियस हो गया मामला। व्हाट इज दैट सस्पिशन? दैट फर्स्ट थिंग, बेंजीन ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, जितने भी बॉन्ड लेंथ आ रहे हैं सीसी के वो सेम आते हैं, डिफरेंट नहीं मिलते। सेकेंड, बेंजीन अल्कीन्स की तरह नॉर्मल एडिशन रिएक्शन नहीं देता, अगर वो नॉर्मल एडिशन रिएक्शन देता तो उसका हीट 360 होता। ठीक है, प्लस ये एविडेंस कि वी डोंट गेट टू डिफरेंट प्रोडक्ट। तो ये तीनों एविडेंस हमको क्या प्रूफ करते हैं कि बेंजीन डज नॉट हैव ट्रू C डबल बॉन्ड C एंड ट्रू C सिंगल बॉन्ड C। ना तो उसमें ट्रू डबल बॉन्ड है, ना तो ट्रू सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है? तो फिर केकुल ने क्या बोला कि नाउ विल मेक वन मोर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जहाँ पर आपको सारी बॉन्ड लेंथ्स इक्वल दिखेगी। क्लियर है? प्लस सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल दिख रही है, मतलब एक्सपेरिमेंटल के हिसाब से जा रही है। प्लस ना आपको ट्रू डबल बॉन्ड मिलेगा, ना तो ट्रू सिंगल बॉन्ड मिलेगा, मतलब यू डोंट हैव दिस ट्रू सिंगल एंड डबल बॉन्ड सिस्टम इन बेंजीन। तो अगर वो नहीं होगा तो एडिशन रिएक्शन हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अल्कीन की तरह बराबर देगा, क्योंकि बेंजीन में जब वो एडिशन रिएक्शन हुआ हीट कम रिलीज़ हुई, तो हीट कम रिलीज़ होने का प्रूफ ये है कि इनके डबल बॉन्ड ट्रू नहीं है। तो केकुल ने यही बोला कि येस, दे डोंट हैव अ ट्रू सिंगल बॉन्ड, ट्रू डबल बॉन्ड, ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, सो देयर इज वन मोर स्ट्रक्चर प्रपोज फॉर बेंजीन, लाइक यू मेक अ डॉटेड सर्कल हियर और यू मेक अ सॉलिड सर्कल। अब ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? बराबर देखो, अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँ, यहाँ से डिवाइड करूँ, यहाँ से डिवाइड करूँ, तो आपकी सारी बॉन्ड लेंथ देखो इक्वल दिखती है। ये देखो, ये सब बॉन्ड्स इक्वल दिखती है। सी, ऑल द बॉन्ड्स आर फाउंड टू बी व्हाट, इक्वल, मतलब सेम बॉन्ड लेंथ सबकी है। सेकेंड थिंग, आपको कहीं पर भी ट्रू डबल बॉन्ड नहीं दिखता, इसके लिए वो अल्कीन जैसा रिएक्शन नहीं देखे, सेम हीट नहीं लिबरेट कर रहा है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में आपको बॉन्ड इक्विवेलेंसी दिखेगी, बिकॉज ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर फाउंड टू बी व्हाट, सेम। प्लस अगर इस पर दो ब्रोमीन ऐड होगे तो आप डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाओगे कि दो ब्रोमीन के बीच में कौन से के बीच में डबल बॉन्ड है और किसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, कि दो ब्रोमीन एक ही जैसे आपको दिखाई देंगे।
लेकिन ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए टू मेक दिस स्ट्रक्चर we have to first make different structure of benzene where the position of atoms remain same but the position of pi bond changes. ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा तो ऐसा बन जाएगा, और अगर ये यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा तो ऐसा बन जाएगा. क्लियर है? तो C6H6 बेंजीन का सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर ये है. क्लियर है? बट ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए फर्स्ट यू नीड टू कम टू एन आइडिया कि बेंजीन is made up of different structures where the position of atom is intact but the position of pi bonds are changing. So such phenomena where the position of atoms are intact but the position of pi bond changes, and we draw different structures to represent one single molecule. We draw different structures to represent one single molecule and none of the structure is the true structure. मतलब इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, पूरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता. बट अगर आप इसके मल्टीपल स्ट्रक्चर बनाओगे और इन सब स्ट्रक्चर को ऐड कर दोगे तो आपको एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर मिलेगा. ठीक है? सो दिस फिनोमिना where a particular compound is represented by various structures and none of the structure is the true form, such phenomena is called as resonance or mesomeric effect, and these two structures are called as resonating or canonical structure. और जब आप रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बना लोगे तो इन सबको मिक्स करने पे एक एक्चुअल स्ट्रक्चर बनता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज अ मिक्सचर ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स, देयरफॉर इट इज एन हाइब्रिड, एंड सिंस फिनोमेना इज रेजोनेंस दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड. सो बेंजीन का सबसे एक्चुअल स्ट्रक्चर और स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? रेजोनेंस हाइब्रिड. क्योंकि यहाँ पर सारी बॉन्ड लेंथ्स आपको क्या दिखाई दे रही है? इक्वल. क्या आपको यहाँ पर ट्रू डबल बॉन्ड दिखाई देता है? नहीं. इसका मतलब बेंजीन अल्कीन्स की तरह बिहेव करेगा? नहीं. मतलब ये ज़्यादा एडिशन रिएक्शन देगा? नहीं. तो ये स्ट्रक्चर बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. क्लियर है? आई गेटिंग इट? बट ये स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद ही आप ये स्ट्रक्चर्स बना सकते हो. So these structures are resonating or canonical structures which represents a single molecule, and when you mix all this structure you make a hybrid form. ठीक है? So अगर आपको resonance के बारे में समझना है तो सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि resonance is the phenomena where a particular structure is represented by various resonating structures and none of the resonating structure is the true form of the original structure. मतलब कोई भी resonating structure सारी property को explain नहीं कर सकता बेंजीन की. And when you mix those resonant structure you get a new form that is called as a hybrid. Clear है? This phenomena is called as resonance and these two are resonant structure or canonical structures. अच्छा, अब इसमें एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको नीचे एक एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर सी प्रॉपरली. जब आप बेंजीन में हाइड्रोजन ऐड करते हो तो वो ऑब्वियसली अल्कीन की तरह बिहेव नहीं करता, बिकॉज नाउ यू हैव अंडरस्टूड डज नॉट हैव अ ट्रू डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड. इसके लिए वो हीट 316E208 रिलीज करता है. एंड कैन यू सी the difference is 152. This energy, the difference is called as resonance energy. ठीक है? Resonance energy is the difference of the theoretical and the actual energy. And or you can say that कि ये energy use हो रही है to stabilize the benzene structure. So it is also called as a resonance stabilizing energy. Stabilizing energy, ये भी आप बोल सकते हो. क्लियर है? Okay, now let us talk about the condition of resonance. The first condition of resonance is that the arrangement of atom must be identical. जैसा मैंने आपको बताया था कि एटम की पोजीशंस चेंज नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था. Okay. In every contributing structure, that is the canonical form,
एटम की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, रेजोनेंस इन्वॉल्व्स डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर। देखो इस केस में डी लोकलाइज का मतलब क्या होता है, जो अपनी पोजीशंस चेंज करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन फिर तीसरी लोकेशन, लाइक दैट दे हैव बीन डी लोकलाइज। तो डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स और दे कैन बी अ डी लोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर का मतलब बॉन्ड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री फ्रॉम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने ये लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसके ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड वीक होता है, दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर सपोज पुल करता है, दैट इज पाई बॉन्ड अगर पुल करता है, तो इस कार्बन पे आ जाएगी डेफिशिएंसी, क्योंकि एक बॉन्ड पूरा शिफ्ट हो गया, तो ये 1 2 3 ट्राइवैलेंट होगा, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ शिफ्ट कर देगा इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी करने के लिए। सो यू गेट स्ट्रक्चर लाइक दिस आर सी ओ, नाउ इट हैज़ 3 लोन पेयर्स माइनस डबल बॉन्ड ओ एच, ओ पे आ गया प्लस चार्ज, क्यों, रीज़न क्या है, बिकॉज तुमने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया और ये ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो पाई बॉन्ड्स डीलोकलाइज हो सकते हैं, लोन पेयर डीलोकलाइज हो सकते हैं, लोन पेयर न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लोन पेयर चार्ज भी हो सकती है, क्योंकि जब ये यहाँ पर आएगा ये वापस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा पाई बॉन्ड, यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर। सो दिस इज द रेजोनेंस फॉर्म, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर्स। और लोन पेयर्स न्यूट्रल फॉर्म में भी हो सकते हैं, चार्ज फॉर्म में भी हो सकते हैं। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट, द एनर्जी कंटेंट ऑफ ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स विल बी नियरली सेम, मतलब इन दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट नियरली सेम होगी। नेक्स्ट, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली टू द हाइब्रिड, मतलब हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वली हाइब्रिड को कंट्रीब्यूट नहीं करता, मतलब हर कोई हाइब्रिड के क्लोज नहीं हो सकता, हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना क्लोज नहीं हो सकता। द स्ट्रक्चर विथ मोर कोवैलेंट बॉन्ड्स are more stable than those with less number of covalent bonds. More covalent bonds are more stable as compared to less covalent bonds. For example, ये molecule देखो, CH2 double bond CH, single bond CH, double bond CH2. This is buta-1,3-diene. Okay. Now suppose if I shift this lone pair here, pi bond on this carbon atom, तो ये कार्बन पे तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि अब इसके पास 1 2 और हाइड्रोजन का 3 बॉन्ड्स है, क्लियर है। तो इसकी डेफिशिएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। सो नाउ व्हाट यू हैव द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंस यहाँ से एक बॉन्ड चला गया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि डेफिशिएंसी आ गई, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, क्लियर है। या तो ऐसा हो सकता है, या तो फिर ये हो सकता है कि ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाए और ये पाई बॉन्ड इधर पे आ जाए उसको न्यूट्रलाइज करने, तो एक स्ट्रक्चर आपका ऐसा भी बन सकता है, दैट इज CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, देन अगेन अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड वापस अपनी पोजीशन पे जाएगा, यू गेट दिस स्ट्रक्चर, अगेन सेम हैपन विद दिस। तो दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्लियर है। अब इन तीनों में से सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा कोवैलेंट है। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट स्ट्रक्चर विथ मोर कोवैलेंट बॉन्ड इज मोर स्टेबल। तो इन दिस विथ क्लियर विद लेस नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, अगर बराबर देखोगे तो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड फर्स्ट में बहुत ज़्यादा है, ऑल आर कोवैलेंट, बट यहाँ पर आने के बाद द पोलैरिटी कम्स इनटू पिक्चर। वह पोलैरिटी के होने की वजह से द कोवैलेंसी डिक्रीजेस एंड द आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मतलब स्ट्रक्चर 2 और 3 में आयनिक कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा है ड्यू टू polarity, ionic character increases, but this is more covalent। तो जितना ज़्यादा कोवैलेंट उतना ज़्यादा स्टेबल, मतलब
स्टेबिलिटी में सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा हो जाएगा इन तीनों में? द फर्स्ट वन, एंड दिस विल कंट्रीब्यूट मोर टूवर्ड्स द हाइब्रिड. क्लियर है? सो मोर टूवर्ड्स द हाइब्रिड, सो दिस शुड बी द मोस्ट स्टेबल अमंग ऑल थ्री. क्लियर है? देन एक ये पॉइंट याद रखना है रेजोनेंस पे अबाउट द स्टेबिलिटी. द नेक्स्ट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट स्टेबिलिटी is that the resonance structure which have like charges on adjacent atom contributes very little towards the resonance hybrid, and these structure possess high energy and thus are high stable. याद रखना, like charges on the adjacent atom, अगर सेम चार्जेस adjacent atom पे हो गए like charges प्लस प्लस माइनस माइनस, तो वो स्ट्रक्चर भी स्टेबिलिटी में कम स्टेबल होता है. देन नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर विथ आइसोलेटेड अनलाइक चार्जेस. मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, ध्यान देना. OH अटैच टू अ रिंग, ऑक्सीजन पे है लोन पेयर्स. क्लियर है? अभी दिस इज फिनॉल, द स्ट्रक्चर इज फिनॉल. इन दिस स्ट्रक्चर दिस कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज. बेंजीन में आपको पता होगा डबल बॉन्ड sp2 है. व्हाट इट विल डू, इट विल ट्राई टू पुल दिस लोन पेयर इनसाइड, जिसके वजह से ये बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे. सो यू गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, डबल बॉन्ड OH प्लस, नेगेटिव आ गया, लोन पेयर शिफ्ट हो गया. क्लियर है? कौन से पोजीशन पे? ऑर्थो. उसके बाद में एक स्ट्रक्चर में ऐसा भी बना सकता हूँ कि लोन पेयर अगर इन दोनों कार्बन के बीच में आया तो दिस लो पाई बॉन्ड शिफ्ट ऑन द पैरा पोजीशन. सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, माइनस डबल बॉन्ड OH प्लस. सपोज ये तीन स्ट्रक्चर मैंने फिनॉल के बनाए, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर 3. नाउ इसमें सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस कि विच इज अमंग देम द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर. तो इट सेज दैट स्ट्रक्चर विथ आइसोलेटेड अनलाइक चार्जेस. आइसोलेटेड अनलाइक चार्जेस, अनलाइक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब वो सेपरेट हो रहे हैं. ओके, देन have less contribution than those in which they are close to each other. अब इन तीनों में से चार्ज सेपरेशन आपको कहाँ दिखेगा? सेकेंड और थर्ड स्ट्रक्चर में. बट सेकेंड और थर्ड स्ट्रक्चर में, सेकेंड स्ट्रक्चर में अनलाइक चार्जेस आर क्लोज ऑर्थो पोजिशन, एंड हियर द अनलाइक चार्जेस आर फार पैरा पोजिशन. क्लियर है? तो इन तीनों में से according to the rule of stability it says कि if unlike charges are close, unlike charges are close, then stability will increase. तो यहाँ पर unlike charges close है as compared to this, तो हाइब्रिड में इसमें सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा? the second one. तो here the second one will contribute to greater stability as compared to the third one. So in this case the second structure will contribute more towards the hybrid of phenol. तो अगर मैं hybrid of phenol बनाऊंगा तो उसमें सबसे closest structure होगा the second structure where the unlike charges are more separated. मतलब this structure will contribute more towards hybrid. तो कोवैलेंट होना चाहिए या तो चार्जेस सेपरेशन में अनलाइक चार्जेस दूसरे दूर होना चाहिए. क्लियर है? ओके, वन मोर एग्जाम्पल जहाँ पर हम स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं. सी प्रॉपरली. एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं एक्रोलीन की, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH. एक अल्डिहाइड है ये. नाउ दिस ऑक्सीजन हैज़ 2 लोन पेयर्स ऑन इट. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन आटम. सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में से इफ ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये पाई बॉन्ड को पुल करेगा. अच्छा, ये ऐसे पुल नहीं होगा. ये सब जब पुलिंग कब होता है? इफ़ द रिएक्शन इज कैरिड आउट. तो हम लोग रिएक्शन के टाइम की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं जब रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है. दिमाग में रखना ये चीज़. तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज गोज टूवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम, ये कार्बन पे डेफिशिएंसी आएगी. सॉरी, ये कार्बन पे डेफिशिएंसी आएगी बिकॉज इस कार्बन की वैलेंसी 4 से 3 हो जाएगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा. लाइक दिस इट विल शिफ्ट. सो व्हेन इट विल शिफ्ट हियर, one of the structure you will get like this: CH2 single bond CH double bond C single bond O with 3 lone pairs, क्योंकि उसने पैर खींच लिया, माइनस साइन. and here there will be an H and here there will be positive charge because यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, यहाँ पर डेफिशिएंसी हो गई. क्लियर है?
ये आपका सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया एक्रोलीन का, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, अब इसका थर्ड स्ट्रक्चर क्या बन सकता है? व्हाट कैन बी थर्ड पॉसिबिलिटी? द थर्ड पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस। सी, सपोज कोई रीजन यहाँ पर अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये कार्बन पे आ गई डेफिशिएंसी। तो जब ये कार्बन पे डेफिशिएंसी आएगी, सो नाउ व्हाट विल हैपन, दिस एंटायर पाई बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, तो द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस, CH2 माइनस, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CO पे प्लस चार्ज, एंड हियर विल बी H, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, योर पाई बॉन्ड, तो O पे डेफिशिएंसी आ गई, O पे प्लस चार्ज, तो ये थर्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब मुझे इसमें सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर ढूंढना है, तो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे लीस्ट पोलैरिटी है, तो वो फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड कौन सा स्टेबल रहेगा? सो नाउ द स्टेबिलिटी का एक पॉइंट आता है कि स्ट्रक्चर वेयर नेगेटिव चार्ज is on more electronegative and positive on less electronegative atom is more stable। तो कोवेलेंसी के हिसाब से फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकेंड और थर्ड में बराबर देखोगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है सेकेंड में, और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है सेकेंड स्ट्रक्चर में। थर्ड स्ट्रक्चर में देखोगे तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन में। तो क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल वो होगा वेयर द नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो सेकेंड स्ट्रक्चर को बराबर देखोगे तो नेगेटिव चार्ज इज मोर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड योर पॉजिटिव चार्ज इज विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और यहाँ पर स्ट्रक्चर 2 में पॉजिटिव चार्ज विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सही बैठ रहा है, बट योर द नेगेटिव चार्ज इज विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं सही बैठ रहा है। तो रूल के हिसाब से सेकेंड शुड बी मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू व्हाट 3। तो कोवैलेंसी, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन, और फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका थर्ड अकाउंट, दैट इज वेयर नेगेटिव पॉजिटिव्स आर ऑपोजिटली प्लेस्ड। क्लियर है? सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो एक चीज़ हमको समझना ज़रूरी है कि रेजोनेंस होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है, इट शुड हैव कॉन्जुगेशन, दैट इज alternate सिंगल एंड डबल बॉन्ड। दूसरा, दे कैन बी अ पाई इलेक्ट्रॉन एंड lone pairs of electron which can undergo delocalization, अपनी जगह से शिफ्ट हो सकते हैं। लेट अस सी